commands in a great happiness. Lord Jagannath makes a loud concert with his flute in the groves on the banks of the Yamuna. He is like a bumblebee, tasting the beautiful lotus-like faces of the cowherd damsels of Vrja. And great personalities such as Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra, and Ganesh worship his lotus feet. May that Jagannath Swami be the object of my vision. In his left hand, Lord Jagannath holds a flute. On his head, he wears peacock feathers. And on his hip, he wears fine yellow silken cloth. From the corners of his eyes, he bestows sidelong glances upon his loving devotee, and he always reveals himself through his pastime in his divine ode of Purna. May that Jagannath Swami be the object of my vision. On the shore of a great ocean, with a large palace, atop the building Nilachal hill, Lord Jagannath resides with his powerful brother Balbhadra and his sisters possessed to be. May that Jagannath Swami bestows the opportunity for devotional service upon all body souls, be the object of my worship. Lord Jagannath is an ocean of mercy and as beautiful as a row of blackish rain clouds. He is the storehouse of bliss for Lakshmi and Saraswati, and his face resembles a spotless, full-blown lotus. The best of demigods and sages worship him, and the Upanishad sing his glories. May that Jagannath Swami be the object of my vision. When Lord Jagannath moves along the road on his Rath Yatra car, at every step large assemblies of Brahmanas loudly chant prayers and sing songs for his pleasure. Hearing their hymns, Lord Jagannath becomes very favorably disposed towards them. He is the ocean of mercy and the true friend of all the worlds. May that Jagannath Swami, along with his consort Lakshmi, who was born from the ocean of nectar, be the object of my vision. Lord Jagannath, whose eyes resemble to lotus petals, with the ornament of the Lord Brahma head, he resides on the Nilachal hill with his lotus feet, placed on the head of Ananta Deva. Overwhelmed by the hero of love, he joyfully embraces Srimati Radharani's body, which is like a pure body. Let Jagannath Swami be the object of my desire. I do not pray for a kingdom, nor do I pray for gold, rubies, or wealth. I do not ask for a beautiful wife as desired by all men. I simply pray that Jagannath Swami, whose glorious Lord Shiva always sings, may be the constant object of my vision. O Lord of the demigods, please quickly remove this useless material existence I am undergoing. O Lord of the Yadus, please destroy their vast shoreless ocean of sins. Alas, this is certain Lord Jagannath bestows his lotus feet upon those who feel themselves fallen and have no shelter in this world but him. May that Jagannath Swami be the object of my vision. जगन्नाथ स्वामी की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीगुरुं सागरजातं सर्वगणरघुनाथां संश्रीवं सादरेकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा
शक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय गौराविर्भाव भूमि स्वनिर्दे सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्ताकारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। गजानन गौराङ्गी राधे जयतासुतो मंगो मंगल वेदति वत्सकं सपादां भुजहारां मोहनं दिव्यादिनारण्य करुणाद श्रीमन्नाथ श्रीमस्तस्तो श्रीमन्नाथ श्री गोविंद देव रूपेशादि स्वामी श्रीमानाथ सरसारंगी वंशी वरदसदा दर्शने तुझे गोपी गोपीनाथाय कृष्ण तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानंदे प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है प्रातःकालीन कक्षा में। आज योगिनी एकादशी है तो आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से कुछ पाठ पढ़ेंगे। और क्योंकि इस्कॉन भिवंडी इस रथ यात्रा के दौरान पहला रथ यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहा है तो इसलिए हम ये देखेंगे कि प्रभुपाद ने इस्कॉन के लिए कैसे फर्स्ट रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया था। ये समय है 19 पता है किसी को कभी हुआ था 1967 सैन फ्रांसिस्को में फर्स्ट रथ यात्रा इस्कॉन का हुआ था। और प्रभुपाद यहाँ से वेस्टर्न वर्ल्ड में गए 1965 में और 66 में प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। और 67 के स्टार्टिंग में अराउंड जैन-फेब या स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ में प्रभुपाद की जो हेल्थ है बहुत खराब हो गई थी और बहुत सारे डॉक्टर्स बुलाए गए। तो प्रभुपाद ने समझा कि ये क्या हो रहा है, ये इशू क्लाइमेट का है तो मुझे वापस इंडिया जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद इंडिया वापस आते हैं और तभी तक उनके पत्र प्रचार कर रहे हैं चल रहा। और 1966 में ही एक बार ऐसे होता है कि प्रभुपाद जो है प्रचार कर रहे होते हैं तो उनके जो शिष्य है मालती देवी मालती माता जी और श्याम सुंदर उनको एक छोटा इतना सा छोटा सा जगन्नाथ जी का विग्रह मिलता है। तो उनको फैसिनेटिंग लगता है, बड़े बड़े आंखें और तो वो लेके प्रभुपाद के पास आते हैं हमको ये एक शॉप में मिला करके। तो प्रभुपाद बोलते हैं अरे प्रभुपाद तुरंत प्रणाम करते हैं तो उनको समझ नहीं आता क्या कर रहे प्रभुपाद। प्रभुपाद दिस इज कृष्णा दिस इज गॉड। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इसके साथ और 2 जन रहेंगे देखेंगे ना आपको। तो बोले हाँ देखे थे। तो लोग वापस जाते हैं फिर उनको भी लेके आते हैं वैसे वो सेट बनता है। तो इसके बाद एक बार ऐसे होता है कि जगन्नाथ जी को प्रभुपाद ने पार्क में कीर्तन चालू किया होता है, मतलब अलग अलग पार्क में प्रभुपाद कीर्तन करते हैं। तो उनके शिष्य एक बार क्या करते हैं जगन्नाथ जी को उठा के ले जाते हैं और पार्क में बैठाते हैं अपने साथ कीर्तन करने के लिए। कीर्तन चल रहा है मतलब उनको दे डोंट नो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है भगवान के। तो लगता है चलो मिलाए टीटी उठा देता है जगन्नाथ जी को लेके चलते हैं वहाँ पे फिर कीर्तन चालू हो जाता है। तो प्रभुपाद चिल्लाते हैं प्रभुपाद कहते ऐसे नहीं, जगन्नाथ जी बाहर जाते हैं लेकिन कैसे जाते हैं रथ पर जाते हैं, ऐसे लेके नहीं जाना है। सो फिर वो बहुत से इंक्वायरी करते हैं सब लोग कैसे करते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं हाँ हम लोग रथ यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रभुपाद का जो हेल्थ है वो खराब होता है और प्रभुपाद वापस इंडिया आते हैं। और इंडिया से जब भी वापस जाने वाले होते हैं तो प्रभुपाद शर्त डालते हैं। सैन फ्रांसिस्को सब लोग बुला रहे प्रभुपाद को तो प्रभुपाद शर्त डालते हैं मैं आऊँगा अगर आप रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करोगे तो। सो इनफैक्ट प्रभुपाद वो रथ यात्रा में थे ही नहीं, उनके सब शिष्यों ने ही वो रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया था। बट प्रभुपाद इंस्पिरेशन थे तो उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे अभी।
8 जुलाई को जब प्रभुपाद तो प्रभुपाद जब भी आते हैं सैन फ्रांसिस्को, तो प्रभुपाद का हेल्थ इतना भी अच्छा नहीं होता है कि डायरेक्ट जाकर मंदिर में रुके, या उनको वो इंडिया का क्लाइमेट चाहिए होता है, थोड़ा ह्यूमिड एंड गर्मी वाला। तो सैन फ्रांसिस्को के एक बीच पर प्रभुपाद के लोग अपार्टमेंट लेते हैं और वहाँ पे रुकाते हैं। वो जो अपार्टमेंट है मेन टेम्पल से करीबन 2-3 घंटे की दूरी पर रहता है, तो उधर का वर्णन है। 2 जुलाई को जब प्रभुपाद पैराडीसियो में 2 दिन बिता चुके थे, श्याम सुंदर और मुकुंद, ये प्रभुपाद के शिष्य, सैन फ्रांसिस्को से वहां कार से पहुंचे। अगला दिन रथ यात्रा का था और श्याम सुंदर और मुकुंद ने, जो प्रभुपाद के स्टिंसन बीच पहुंचने के बाद उनके पास आने वाले पहले भक्त थे, उन्हें रथ यात्रा की तैयारियों के बारे में बताया। निस्संदेह पूरा उत्सव प्रभुपाद के विचार की उपज था और सैन फ्रांसिस्को के भक्त ठीक वही करने की कोशिश कर रहे थे जो प्रभुपाद ने उनसे करने को कहा था। सो प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू से, क्या बोलते थे प्रभुपाद? डू एज आई डिड, जो मैं कर रहा हूँ वो आप करो, जस्ट फॉलो। एंड तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं, प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं उनके शिष्य क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्सव का विचार प्रभुपाद के मन में पहले पल तब आया जब वे फेडरिक स्ट्रीट स्थित अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। समतल फर्श वाले ट्रकों को नीचे सड़क पर गुजरते देखकर प्रभुपाद के मन में आया कि किसी ऐसे ट्रक पर जगन्नाथ विग्रह को आसीन कर अमेरिकी ढंग का रथ यात्रा उत्सव मनाया जा सकता है। सो इंडियन कल्चर एंड अमेरिकन ट्रक्स इस पे डाल रहे हो। वो फ्लैट ब्रेड ट्रक होता है ना, इधर इतना शुद्ध हिंदी है, समतल फर्श वाले ट्रक, मतलब फ्लैट ब्रेड ट्रक होता है ना, ट्रेलर जैसे दिखते हैं लंबे लंबे। तो इसे प्रभुपाद ने देखा था, प्रभुपाद ने सोचा कि क्यों ना जगन्नाथ जी के विग्रह को इसमें उठाकर हम रथ यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा ट्रक का खाका बनाया था जिसके पिछले भाग में 4 खंभों के ऊपर चंद्रमा टैंक था और जो पताका और घंटी और फूल मालाओं से सजा था। और उन्होंने श्याम सुंदर को बुलाकर कहा था, जय श्री राधा जगन्नाथ। उन्होंने श्याम सुंदर को बुलाकर कहा था, रथ यात्रा के लिए ऐसी गाड़ी तैयार करो। अब वैसी ही एक गाड़ी फेडरिक स्ट्रीट के मंदिर में बाहर खड़ी थी, जो पीले रंग की भाड़े की एक हट स्ट्रक थी और टिगर्स की ओर से दी गई थी। इसने उसको स्पॉन्सर किया था। उसमें 5 फुट वाले खंबे लगे थे जिनमें पिरामिड स्टाइल कपड़ा का चंदवा तना था। तो डेकोरेशन के बाद बताया गया कैसे उन्होंने फ्लैट बेड ट्रक तो ओपन है, तो उसमें भी भगवान का ऑल्टर बनाना है, उन्होंने 4 पिलर लगाए, फिर उसको सजाया था। हमारे भी 4 पिलर आएंगे इधर। तट पर प्रभुपाद के साथ बैठे हुए मुकुंद ने उन्हें बताया कि सभी भक्त किस प्रकार बड़े उत्साह से कार्य में लगे थे और हैटविल के हिप्पी किस प्रकार अगले दिन निकलने वाले जगन्नाथ की रथ यात्रा के विषय में बातें कर रहे थे। तो ऑलरेडी माहौल फैल गया था, अभी तभी सोशल मीडिया का जमाना था तो था नहीं। सो इट इज माउथ पब्लिसिटी टू कम, जब लोग बताते थे कि रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी को हम बाहर लेके जाएंगे और फिर पैम्पलेट छापे रहेंगे, पैम्पलेट शूट किए थे। तो उसी से क्या हो गया था, पूरा पब्लिसिटी हो गया था। हैट ऐश्वर्य मतलब वो सैन फ्रांसिस्को एक जगह था जहाँ पे इस्कॉन का टेम्पल था, हिप्पी लैंड बोलते थे, यहाँ पे सब ट्रकिस्ट लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होते थे। ऐसी जगह पर रथ यात्रा होगा। तो अगले दिन निकलने वाले जगन्नाथ की रथ यात्रा के विषय में बातें कर रहे थे। भक्तों का प्रयत्न था कि रथ यात्रा का जुलूस गोल्डन गेट पार्क से निकले, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से उन्हें केवल फेडरिक से नीचे की ओर सागर तक जाने की अनुमति थी। सो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कि कहाँ पे जाइए, जहाँ पर भी जाना है, बट एक पर्टिकुलर रूट दिया था जहाँ पे रथ यात्रा चलेगा। मुकुंद ने बताया कि भक्तों की योजना थी कि भगवान जगन्नाथ चंद्रमा के नीचे ट्रक की दाई और देखते हो, सुभद्रा पीछे की ओर और बलभद्र बाई ओर। सो अभी डीटीज को हम देखते हैं हमारी तरफ फेसिंग है, यहाँ पे हम कोई भी रथ यात्रा देखते हैं तो तीनों एक जगह पे देख रहे हैं।
इधर उन्होंने अलग ही किया था, मतलब 3 साइड ओपन है ट्रक के, तो तीनों डीटीज अलग अलग जगह पे देख रहे हैं। तो कृष्णा देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, सुभद्रा माई दिख रही है पीछे के साइड पे, और बलदेव जी जो है दिख रहे हैं राइट साइड पे। समझ गए आपको कैसे बैठा है? सुभद्रा पीछे की ओर, और वह जानना चाहता था कि क्या यह ठीक होगा। प्रभुपाद ने कहा कि वास्तव में विग्रह को अलग अलग गाड़ियों में निकालना चाहिए, जिन्हें रस्सियों से बांधकर जनसमूह सड़कों में खींचता चले। हो सकता है कि आगे के वर्षों में यह संभव है। तो फर्स्ट ईयर है तो एक ही गाड़ी में लेकर जा रहे हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पे कि पॉसिबल होगा कि अगले समय में वो 3 रथ बना सकते हैं। इसे अच्छे ढंग से करना, प्रभुपाद ने आगाह किया, जल्दी मत करना। भक्तों को चाहिए ट्रैक को सड़कों में धीरे धीरे चलाकर समुद्र तक ले जाए और कीर्तन लगातार करते रहें। दिस इज प्रभुपाद सेइंग, ऑलवेज क्या करो, कीर्तन करते रहो। मुकुंद श्याम सुंदर ने जयानंद की प्रशंसा की। वह अनुदान, फूल और फूल इकट्ठा करने के लिए सारे सैन फ्रांसिस्को में घूमता फिरा था। उसने ट्रक सजाने वालों की खोज निकाला, ट्रक पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाया और स्टोरों में जाकर इश्तिहार बांटे। सोशल मीडिया था नहीं, तो पब्लिसिटी कैसे किया था, पैम्पलेट्स बांटे थे। तो जयानंद प्रभु का आपने नाम सुना ही होगा या फिर आपने देखा होगा, बहुत जन को पता नहीं है तो उनके बारे में बताते हैं कि जयानंद प्रभु प्रभुपाद के इनिशियल सबसे पहले डिसाइपल्स में एक थे, और ये जो फर्स्ट रथ यात्रा था इसके लिए उन्होंने बहुत कष्ट किए थे। ही वॉज बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी उन्होंने, लेकिन वो टैक्सी चलाते थे। कभी रात को, दिन में ऑफिस, रात को टैक्सी, और उसमें से जो पैसा आता था वो प्रभुपाद के मंदिर के लिए देते थे। किसके लिए? मंदिर चलाने के लिए। ठीक है, तो इंजीनियर होकर टैक्सी चला रहा है किसके लिए? क्योंकि मंदिर में भी डोनेशन कोई आता नहीं है, फॉरेन में कौन डोनेशन दे रहा है इसका कृष्ण के भक्ति के लिए। तो जो भी डोनेशन आता था, ये प्रभुपाद के शिष्य जो है ये बाहर जॉब करते थे, पैसा कमाते थे और उससे डोनेशन देते थे। और वैसे प्रभुपाद का वैसे इस्कॉन के सब पहले मंदिर का जो रेंट भरना हो या भक्तों का खर्चा हो, प्रसाद का खर्चा हो, फेस्टिवल का खर्चा हो, सब निकलता था। तो वहाँ पे ये बता रहे हैं कि जयानंद प्रभु ने सब प्रयत्न किया था। वो गाँव शॉप में जाकर पैम्पलेट बांट रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि एक मधुकरी ये दो वो दो हमको करके आ रहे हैं। सो ही पुट लॉट ऑफ एफर्ट ये सब करने के लिए। तो इसलिए जब भी जयानंद प्रभु ने अपना देह छोड़ा, कि उनको कैंसर हो गया था, लैटर स्टेज मतलब प्रभुपाद थे, प्रभुपाद अभी भी इस धरती पर थे। 1977 की बात है, फर्स्ट पार्ट। जयानंद प्रभु कैंसर हो गया था, उन्होंने किसको बताया नहीं कि हुआ, और फिर उन्होंने एक दिन पहले, नरसिम्हा चतुर्दशी के एक दिन पहले उन्होंने अपना देह छोड़ा। तो प्रभुपाद लिखते हैं अपने भक्तों को लेटर में, he was a very glorious devotee, he achieved Vaikuntha, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं clear cut, and then please hang one photo of every, जहाँ पे भी रथ यात्रा चलेगा वहाँ पे उनका फोटो रहना चाहिए। तो क्योंकि प्रभुपाद के होते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो प्रभुपाद ने एक उनको क्या बोलते हैं, एक वैष्णव को प्रॉपर बेफिटिंग ट्रिब्यूट जैसे बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सलामी और ट्रिब्यूट को हिंदी में बताने का। तो ये उनको दिया था कि उनका फोटो जो है अभी भी, आज भी आप कोई भी इस्कॉन करता है तो देखते हैं तो उसके जयानंद प्रभु का फोटो आता है। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहला इस्कॉन यात्रा सक्सेसफुल करने में पूरी अपनी जान लगा दी थी। इवन ही वाज हेल्पिंग रथ। तो अभी तो हमारे पास रथ रेडी है, जो हमारा रथ आया है वो हमने तो जू का पुराना छोटा रथ लिया है, या आजकल लोग रथ यात्रा निकालते तो मैक्सिमम टाइम बाहर से रथ रेंट पे आता है, बट यहाँ पे उन्होंने रथ क्या किया था, बनाया। जब सब डिटेल में उनका वर्णन है, तो यहाँ पे वैसे उन्होंने बहुत सारा परिश्रम किया था जैन को। तो प्रभुपाद ने फिर उनके लिए आगे मैं सोचो ना 10,000 ईयर्स तक महाप्रभु का
प्रचार होगा, 10,000 ईयर्स तक इस्कॉन रहेगा, 10,000 ईयर्स तक रथ यात्रा होगा, 10,000 ईयर्स तक क्या होगा, जैन प्रभु का फोटो। आने वाली पीढ़ियां भी जानेंगी क्या उनका सैक्रिफाइस था प्रभुपाद के पोस्ट मिशन के लिए। तो हमें भी इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ये अब हमारा रथ यात्रा हो रहा है, इसमें हमें सहभाग लेना चाहिए, कुछ सेवा का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम करना चाहिए। मुकुंद और श्याम सुंदर ने जैन की प्रशंसा की। वह अनुदान, फल फूल इकट्ठा करने के लिए सारे सैन फ्रांसिस्को में घूमता फिरा था। उसने ट्रक सजाने वालों की खोज निकाला, ट्रक पर ध्वनि विस्तार यंत्र लगाया और शोरूम में जाकर स्टेयर बांटे। वह थका नहीं था और उसका उत्साह हर एक को भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। महिलाएं दिन भर चपातियां बनाने में लगी रहती थी। फलतः जन समुदाय में बांटने के लिए हजारों चपातियां तैयार हो गई थी। भक्तों ने हरे कृष्णा रथ यात्रा के हजारों उत्सव गुब्बारे तैयार किए थे, जिन्हें जुलूस शुरू होने पर सड़कों पर छोड़ा जाएगा। जब भक्तों ने पूछा कि उन्हें और क्या करना चाहिए, तो प्रभुपाद बोले कि यह पर्याप्त था। जुलूस, प्रसाद वितरण और कीर्तन, तीन चीजें प्रभुपाद कहते हैं। प्रोसेशन, प्रसाद वितरण करो और कीर्तन करो। लोगों को भगवान जगन्नाथ के दर्शनों और हरे कृष्णा कीर्तन का अवसर मिलना चाहिए। पूरी यात्रा में रथ के इसे बढ़िया ढंग से करो, प्रभुपाद ने कहा। इसे इतने बढ़िया ढंग से करो जितना तुम कर सकते हो और भगवान जगन्नाथ संतुष्ट होंगे। तो ऑल ग्लोरीज टू जगन्नाथ बोलते हैं, ऑल प्लेजर फॉर द लॉर्ड, कि हमको कीर्तन भी करना चाहिए, जुलूस भी निकालना चाहिए, प्रसाद भी किसके लिए होना चाहिए, भगवान की खुशी के लिए। तो इसमें दुष्टे जगत दुष्टे वो खुश हो रहे हैं तो फिर जन समुदाय आराम से खुश हो सकता है। अगले दिन तीसरे पहर की शांत बेला में प्रभुपाद अपने कमरे में माला फेरते हुए बैठे थे। उपेंद्र उनके साथ था और कीर्तनार्थ पाठशाला में भोज के लिए भोजन बना रहा था। सहसा प्रभुपाद ने मंजिलों की झंकार सुनी और प्रसन्न हो गए। उनके नेत्र विस्फारित हो गए। बाहर की ओर झांक कर उन्होंने रथ यात्रा का रथ देखा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम आसीन थे। दर्शनों भक्त और हिप्पी प्रभुपाद के दर्शनों के लिए आतुर थे। उनका अभिवादन करने के लिए वे बाहर गए और विग्रहों को भक्तों द्वारा अंदर लिवा लाए और उन्हें पियानो के ऊपर स्थापित किया। पियानो के भक्त समुदाय और अतिथि अंदर आने के लगे। कमरा पूरा भर गया। मुस्कुराते हुए प्रभुपाद ने कुछ लोगों को आलिंगन किया, जबकि अन्य लोगों ने उनके चरणों में अभिवादन किया। कुछ भक्त पाठशाला में कीर्तन की मदद करने लग गए, जिसमें उसके द्वारा तैयार किए गए भोजन का वितरण हो सके। अन्य भक्त रथ यात्रा उत्सव की सफलता पर अपने विवरण देने लगे। तो रथ यात्रा चालू हुआ टेम्पल में, और उन्होंने कहाँ पे लाया था, जहाँ पे प्रभुपाद बीच पर रुके थे उनके घर में, वहाँ पे वो रथ यात्रा आया। प्रभुपाद के घर में डीटीज को दिया गया। तो ये उसका समापन है। अभी बीच में भी उसमें आता है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो रथ यात्रा हो रहा था। यह महान था, आश्चर्यजनक था, यह बहुत सुंदर दिन था, उन्होंने कहा, और भक्तों द्वारा दिए गए उत्सव के वर्णन को सुनकर प्रभुपाद गदगद हो गए। तो प्रभुपाद एक्चुअली शामिल नहीं हुए थे रथ यात्रा में, बिकॉज ही वाज नॉट वेल, की जो सेहत ही अच्छी थी। बहुत से हिप्पियों ने इस महान जुलूस में भाग लिया था। मुकुंद, हरिदास, हयग्रीव और महिलाओं में से कुछ विग्रहों के साथ गाड़ी में थी और यमुना की हार्मोनियम ध्वनि सहित अन्य बाजों की ध्वनियों को माइक्रोफोन से प्रसारित किया गया। सड़कों पर हर एक ने इसे पसंद किया। साथ में चलती मोटार में बैठी पुलिस ने भक्तों से जल्दी करने की कोशिश की, लेकिन सामने इतनी अधिक भीड़ थी कि जुलूस लाचारी में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सो इट ऑलवेज हैपेंस। तो प्रशासन होता है उनको चाहता है कि जल्दी खत्म हो और रथ यात्रा जल्दी खत्म हो जाए ताकि उनका टेंशन जो है खत्म हो जाए। बट यहाँ पे देख रहे हैं रथ यात्रा बहुत स्लो चल रहा था। ऐसे एक बार अभी तो यहाँ पे प्रॉपर थे नहीं रथ यात्रा में, तो इससे भी ज्यादा हो सकता था। 1973 लंदन रथ यात्रा, फर्स्ट लंदन रथ यात्रा, जब लंदन में फर्स्ट टाइम हुआ था, तो तभी वो फेमस जगह है ट्रैफलगर स्क्वायर करके, वहाँ पे वो खत्म होने वाला था। वहाँ पे प्रभुपाद ने भाषण दिया था। इफ यू सी यूट्यूब पे उसका वीडियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग भाषण दिया प्रभुपाद ने वहाँ पे ट्रैफलगर स्क्वायर पे। तो उस रथ यात्रा में प्रभुपाद शामिल हुए थे और करीबन प्रभुपाद 1973 में ही 77 इयर्स ओल्ड, 7 साल के थे
उसमें लिखा है कि करीबन 4 से 5 मील, करीबन 4 से 5 घंटा प्रभुपाद कंटिन्यूस नाचे थे। फॉर 4 आवर्स कंटिन्यूस नाच रहे प्रभुपाद एट द एज ऑफ 77। तो प्रभुपाद इतना नाच रहे, प्रभुपाद नाच रहे तो उनके डिसाइपल तो बाजू में नाचेंगे, तो कोई सुन नहीं रहा है, आगे जा नहीं रहा यात्रा और बहुत स्लो जा रहा है बोलेगा। तो पुलिस आके हर बार वो जो कोऑर्डिनेटर था उसको आके हर बार बोल रहे थे, अरे टेल योर स्वामी गो अहेड, टेल योर स्वामी गो अहेड। मतलब अब स्वामी आगे नहीं जाएंगे तो क्या आगे नहीं जाएगा। मतलब इवन फॉर रथ यात्रा के लिए प्रभुपाद जहाँ पे नाच रहे थे वहाँ पे सब रुक गया था। तो एट एज ऑफ 70 से प्रभुपाद नाच सकते हैं, तो हमें सबके लिए मौका है, हमें भी नाचना चाहिए और सबको नचाना चाहिए। हमारा तो छोटा ही रहता है 3 किलोमीटर का, बट वी कैन ट्राई जितना हो सकता है, जितने लोग सम्मिलित होंगे उनको नचाओ, उनको कीर्तन करवाओ, यही जगन्नाथ जी की कृपा है। स्वामी जी यही चाहते थे। सुबह रास्ते भर नाचता रहा था और जान करता बजाता ऊपर नीचे उछल कूद कर रहा था। ट्रकों से कुछ महिलाओं ने संतरे, सेब और केले काटे हुए टुकड़े बांटे थे और कुछ ने फूल फेंके थे। भीड़ ने इसे बहुत पसंद किया था। श्याम सुंदर ने बताया कि ढालू पहाड़ की चढ़ाई कैसे थी। अभी ये जगन्नाथ जी का पास है, श्याम सुंदर को बता रहे हैं। तो वहां पे कैसे था, एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, उतार था, चढ़ाव था, चढ़ाव था। तो ट्रक अभी वो चढ़ रहा है, तो उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। श्याम सुंदर ने बताया कि ढालू पहाड़ की चढ़ाई कैसे की थी। श्याम सुंदर ट्रक चला रहा था, उसका कुत्ता राल उसके साथ सामने की सीट पर बैठा था। तब ट्रक सहसा रुक गया। उसने इंजन को चालू करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हुआ था। तब भी ब्रेक फेल हो गया। ट्रक ढाल पर नीचे की ओर खिसकने लगा। अंततः उसने किसी तरह रोका था, लेकिन जब उसने ऊपर जाने की कोशिश की तब इंजन फिर बंद हो गया और ट्रक नीचे जाने लगा। वह इंजन चालू करता था, ट्रक ऊपर की ओर आगे चलता था, फिर इंजन बंद हो जाता था और ट्रक नीचे आ जाता था। हर एक को चिंता होने लगी थी। अंत में ट्रक ऊपर की ओर चलने लगा और जुलूस की तट की ओर यात्रा जारी हो गई। श्रील प्रभुपाद मुस्कुराए। यह भगवान जगन्नाथ की लीला थी, उन्होंने कहा। तो ट्रक को भी कौन संभाला था? जगन्नाथ जी एक्चुअली संभाल रहे थे। ड्राइवर ऐसे जस्ट निमित्त मात्र भव शब्द साक्षी बोलते हैं प्रभुपाद। कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को इन भगवद गीता कि तुम कौन बनो? निमित्त बनो। तो यहाँ पे श्याम सुंदर को एक्चुअली ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, पर ड्राइविंग कौन कर रहे थे? जगन्नाथ। उनके मूड में कभी पीछे कभी आगे। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनका जब भी आविर्भाव हुआ था 1874 फरवरी 1874, तो उस साल का जो जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ था जून जुलाई में पुरी में, तो वहां पे भी ऐसे ही हुआ था कि जगन्नाथ जो है रथ खींचे जा रहा है। फिर उनका जो अपीयरेंस हुआ था, उनका जो आविर्भाव हुआ था, वो अभी वहां पे चैतन्य मठ है वहाँ, चैतन्य गौड़ी मठ, चैतन्य मठ है वहाँ पे अभी। तो वहाँ पे उनका भक्तिविनोद ठाकुर का घर था अभी। तो वो घर के सामने, वो ग्रैंड रोड पर ही वो घर है, अभी भी मठ वहाँ पे ही है। कभी पूरी जाते हैं तो विजिट कर सकते हैं। तो वो मठ के सामने आके जगन्नाथ जी रुक गए। कितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब जगह से खींचने का, और रथ आगे नहीं बढ़ता, तो वहाँ पे रुका था। क्यों? क्योंकि ऐसे कहते हैं कि उसके बाद जो है भक्ति सिद्धांत महाराज की जो मदर थी, उन्होंने क्या किया, 3-4 महीने वाले नवजात शिशु को लेके आई और उन्हें जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया। जैसे उन्होंने जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया, तो जगन्नाथ जी से क्या होगा, उनका हार उनके गले में दिया। और फिर वो माता निकल गई और फिर जगन्नाथ जी अपना रथ लेकर आगे चले गए। तो इवन जगन्नाथ जी भी रुके थे इसका दर्शन करने के लिए, अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए। हम देख सकते हैं कि जगन्नाथ जी की यहाँ भी ऐसा कुछ हो जाए, भिवंडी रथ यात्रा पानी मत हो जाए समझ लें कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उनकी लीला है। तो भक्तों से सबसे निवेदन है कि आप प्रे करते रहिए जगन्नाथ जी को, नेक्स्ट 7 दिन 8 दिन जितने भी दिन अगर रथ यात्रा होने वाली, कि वो रथ यात्रा बहुत अच्छे से चले। भक्तों की प्रार्थना रहेगी तो जगन्नाथ जी एकदम खुशी से चलेंगे। इसलिए प्रभुपाद मुस्कुराए, यह भगवान जगन्नाथ की लीला थी, उन्होंने कहा। यही तब भी हुआ था जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में सम्मिलित हुए थे।
तब भी रथ रुक गया था और कोई भी उसे हिला नहीं सका था। उड़ीसा के राजा ने सबसे शक्तिशाली पहलवान को रस्सियों को खींचने और रथ को ठेले में लगाया था, लेकिन वह चला नहीं था। हाथी भी उसे चला नहीं सके थे। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना सिर लगाकर रथ को ढकेला था, तब भी रथ आगे बढ़ा था। अब रथ यात्रा पश्चिम में आ गई और उसके साथ भगवान जगन्नाथ की लीला भी आ गई। जगन्नाथ जी के लिए सीमित नहीं है जगन्नाथपुरी या ग्रैंड रोड से क्या करने के लिए, लीला करने के लिए। सैन फ्रांसिस्को में भी लीला चल रही है। प्रभुपाद ने देखा कि कुछ भक्त वहां नहीं थे। यमुना और जानकी ने कहाँ है, उन्होंने पूछा। भक्तों ने बताया कि कुछ हिप्पियों ने LSD में लगी मिस्री पार्टी थी और भक्तों में से कुछ ने अनजाने में उसे स्वीकार कर लिया था। वे अब उसके प्रभाव से ठीक हो रहे थे, बिकॉज वो हिप्पी लैंड है, तो वहाँ पे उन्होंने सब इंटॉक्सिकेशन दिए थे ताकि जो भी है जो बाहर के लोगों ने बांटा था। तो यहाँ पे भी हम प्रसाद बांटेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे ताकि लोगों को होता ना, वो प्रभुपाद जी LSD देते तो LSD लोग लेते थे, तो प्रभुपाद कहते थे कि व्हाई यू वांट टू एंजॉय दिस, तो उन लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, आई वी वांट टू स्टे हाई। सो प्रभुपाद बोलते आई विल गिव यू समथिंग व्हिच विल कीप यू हाई फॉरएवर, मतलब हमेशा के लिए आप हमें में रहोगे, आप हाई रहोगे। तो वैसे है यहाँ पे हमको अभी इंटॉक्सिकेशन देकर लोगों को थोड़ा हवा में जाते हैं, हमको प्रसाद देकर उनको ज्यादा हवा में डालना है, इसलिए प्रसाद बांटना है। सुबल ने बताया कि उत्सव के बाद किस प्रकार वह अन्य 30 भक्तों के साथ जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की श्री विग्रहों को फूलों से सजे और चंदवा से ढके ट्रक में रखकर यात्रा पर निकल गया था। पहाड़ों के बीच से उनकी यह यात्रा एक ऐसी गाड़ी में हुई जो उस केंद्र के लिए जरूर एक असामान्य सवारी रही होगी। जब सभी मेहमान चले गए तो श्री विग्रह प्रभुपाद और उनके सेवकों के साथ घर में रह गए। प्रभुपाद को संतोष था कि उनके शिष्यों ने रथ यात्रा उत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक किया। यद्यपि वे प्रशिक्षित नहीं थे, वे कर्तव्यनिष्ठ थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्तिविनोद ठाकुर यह पहली अमेरिकन रथ यात्रा देखकर प्रसन्न हुए थे। यू नो दिस इज भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रेडिक्शन किया था, when that time will come will and Americans and Europeans will उन लोग हाथ में करताल लेंगे, मृदंग लेंगे और कीर्तन में नाचेंगे। सो ये अभी होते हुए दिख रहा है, बिकॉज कृष्णा का एक सेनापति उन्होंने ये ठान दिया था कि प्रचार करना है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उनको सबको भक्त बनाना है, कृष्णा कॉन्शियस बनाना, वैष्णव बनाना। प्रभुपाद की ये असीम श्रद्धा अपने गुरु के शब्दों पर, कृष्ण की महाप्रभु की वाणी पर असीम श्रद्धा थी, तो इसलिए ये सब सफल हो रहा। क्योंकि सोचो ना कि उनको कुछ पता ही नहीं है जगन्नाथ जी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, क्या हो रहा था यात्रा, और उन लोग सफलतापूर्वक सब कर रहे हैं, लोग नाच रहे, कीर्तन में प्रसाद ले रहे हैं। सो ये पॉसिबल नहीं है। एक शुद्ध भक्त का जब भी इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे प्रभुपाद की इच्छा है, तो भगवान जो है हमेशा उसको क्या करते हैं, पूरी करने का, पूरा करने का प्रयास करते हैं। सो आप लोगों से बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, प्लीज जगन्नाथ जी को प्रार्थना कीजिए कि हमारा भिवंडी का भी रथ यात्रा ऐसे सफल हो और फर्स्ट रथ यात्रा इन इस्कॉन भिवंडी, फर्स्ट रथ यात्रा इन भिवंडी के स्ट्रीट पर अच्छा चले, ज़्यादा से लोगों तक पहुँचे। आप माउस पब्लिसिटी कर सकते हैं। अभी हमारे बहुत सारे मीन्स है, सोशल मीडिया है, हम लोग कर ही रहे हैं, बट जितना आपके नॉन पर्सन को बता सकते हैं बता दो, उनको रथ यात्रा बुलाइए, प्रसाद वितरण होगा, उनको कीर्तन में सहभाग करने को मिलेगा, जगन्नाथ जी का दर्शन मिलेगा। श्लोक आता है, रथेतु मामं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर भगवान जगन्नाथ को आप सिर्फ रथ पे आरूढ़ होने को देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, तो भी क्या होता है, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता इस भौतिक शरीर में। तो हमें ये वाणी पर श्रद्धा चाहिए और इसीलिए हम ज़्यादा से लोगों को बुलाना चाहते हैं कि देख रहे हैं इस दुनिया में क्या चल रहा है, शरीर जीवन में इतने सारे वॉर चल रहे हैं, एंग्जाइटी, कितना एंग्जाइटी है,
बट इसमें से लोगों को बचाना है तो यही, अगर इट्स डिफिकल्ट है लोगों को यहाँ पे बुला कर पागल क्लास में बिठाना, बहुत डिफिकल्ट है लोगों को बिठाकर कीर्तन हरे कृष्ण का जप करवाना, सुलाना, बहुत डिफिकल्ट। बट बाहर रास्ते पे नाचने के लिए बोलो तो बहुत आसान है, लेकिन प्रसाद देने बोलो आसान है। तो ये जगन्नाथ जी की कृपा है, जगन्नाथ जी का बहुत दयालु भाव है कि वो दर्शन देने बाहर आ रहे हैं। तो हमारा प्रार्थना होना चाहिए, हमारा सबका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम इसमें सफल लेंगे और इस रथ यात्रा को हम सफलतापूर्वक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी की जय।